A very good morning, children. This is your GK period. So, children, I would request everyone to kindly take out your GK books and a pencil and get ready for the session. Children, today we are going to start a new chapter, that is Knowing India. So, children, what does it mean? It means that in this today's session we are going to know about our country where we live. So children, my first question is, in which country do we live in? We live in India. So we are going to start learning about our country, India. We are going to learn in this chapter about various locations, monuments and special personalities of our country. So children, let's begin. Children, in this slide you can see that a map of India is given here. Okay. So children, first of all I would like to tell you that there are 28 states and 8 यूनियन टेरिटरीज. सो चिल्ड्रन, जो भी इस मैप में ब्लैक एंड बोल्ड से लिखा हुआ है वो सब क्या है? हमारे स्टेट्स हैं. ठीक है. सो चिल्ड्रन, आप यहाँ देख सकते हो हम लोग ने ये देखिए, ये जितने भी स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, दीज आर ऑल states. Okay. So children, my first question now is for you is, in which state do we live in? हम कौन से स्टेट में रहते हैं? आप सबको पता होगा चिल्ड्रन, हम लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में. और एंड उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ. राइट, ये देखिए दिया हुआ है उत्तर प्रदेश एंड द कैपिटल इज लखनऊ. सो वी लिव इन दिस रीजन, इन द ग्रीन पोर्शन. राइट, ये देखिए यहाँ पे रहते हैं हम लोग. ओके. सो चिल्ड्रन, जो भी यहाँ पे ब्लैक से लिखा हुआ है बोल्ड लेटर से, एंड उसके नीचे आप देखेंगे सर्कल है एंड पॉइंट है, उसके नीचे जो भी मेंशन है नेम, सिटी का नेम, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ दैट स्टेट. ऑल राइट, आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं. ओके. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, ये नीचे बेटा ये ब्लू ब्लू क्या दिया हुआ है? ठीक है, ये देखो आप यहाँ देख सकते हो ब्लू ब्लू है ना, इधर भी आप ब्लू ब्लू दे सकते हो. तो ये ब्लू ब्लू है वाटर. क्या है? वाटर. एंड इन विच फॉर्म द वाटर इज? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सी. बेटा हमारी कंट्री में 2 सी है. ठीक, आपने पढ़ा होगा देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाटर. राइट, in the form of lake water is present, in the form of pond water is present, in the form of well, in the form of rivers, in the form of ocean, in the form of sea. So in many forms water is present in our country. Right, so there are many rivers, there are many ponds, there are many lakes. बहुत सारे lakes हैं, बहुत सारे wells हैं. but हमारे country में कितने seas हैं? 2 seas हैं, 2 seas हैं. ओके. सो व्हाट आर देयर नेम्स? अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे है अरेबियन सी. दिस साइड, लेफ्ट साइड में आप ये देखोगे जो भी पानी है यहाँ पे है अरेबियन सी. और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप अगर देखोगे तो ये है बे ऑफ बंगाल सी. ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ओके. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके. So the next slide is about states and union territories. Okay. So at present India has 28 states and 8 union territories. Okay. So beta, in this box there is a list of 28 states. There are names written of 28 states and their capitals. Okay. So यहाँ पे देखिए 28 states दिए हैं serial number में, and their states name and their capitals. Okay, so now children, your homework is that you have to learn all the capitals of the states. Okay, there are 28 states and आपको सारे capital states के learn करने होंगे. This is your homework, and in the next session I am going to ask you
the capitals of any state. Okay, so moving to the next slide. Andamans and Nicobar Islands. Okay, so children, first of all, moving to this slide, I'm going to take you to the map of India. Okay, so let's go to map of India. ठीक, चिल्ड्रेन ये देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी. हमारे कंट्री में 2 सी है, फर्स्ट इज़ अरेबियन सी एंड सेकेंड इज़ बे ऑफ बंगाल. सो इस साइड आप लेफ्ट साइड देख सकते हो, तो यहाँ पे अरेबियन सी है. ओके, एंड यहाँ पे है इस साइड, राइट साइड है हमारे बे ऑफ बंगाल सी. ओके, सो जो सारी रिवर्स हमारे कंट्री में फ़्लो करती हैं बेटा, तो वो सारी जो रिवर्स हैं जो फ़्लो करती हैं वो अल्टीमेटली कहाँ जाके, किस पानी से जाके मिल जाती है, या तो अरेबियन सी में जाके मिल जाता है रिवर का पानी, या तो बे ऑफ बंगाल सी में. ओके, सो जितनी भी रिवर्स हैं, गंगा हो, यमुना हो, है ना, ब्रह्मपुत्र हो या कावेरी रिवर हो, कोई भी रिवर हो बेटा, वो या तो अरेबियन सी में जाके समा जाती है, या तो बे ऑफ बंगाल में जाके मिक्स हो जाता है सारे रिवर्स का पानी. ओके, सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट बेटा, दैट there are 2 islands, 2 set of islands are also present in our country. Okay, so beta एक है, फर्स्ट आइलैंड इज लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड द सेकेंड आइलैंड इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ओके, तो बेटा सबसे पहले आप समझिए व्हाट इज़ एन आइलैंड. आइलैंड क्या है? एन आइलैंड इज़ अ लैंड फॉर्म. एन आइलैंड इज़ अ फॉर्म ऑफ लैंड which is surrounded by water on all the sides, on all the sides. Okay, आइलैंड क्या है? आइलैंड बेटा एक ऐसा लैंड है जो पानी से चारों तरफ से सराउंडेड है. ओके, यानी पानी के बीच में एक लैंड जो होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? आइलैंड. ओके, एंड आइलैंड जो है वो सराउंडेड होता है, यानी कंप्लीटली सराउंडेड होता है, कवर्ड बाय वाटर. ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया था, देर आर 2 सीज इन आर कंट्री. सो बेटा इन आर कंट्री देर आर 2 सेट ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो. सो एक आइलैंड जो है वो है लक्षद्वीप आइलैंड्स. आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स में, दिस इज़ अ लक्षद्वीप आइलैंड्स. एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स कौन से सी में है? अरेबियन सी में. ये देखिए अरेबियन सी लिखा हुआ है. ओके, एंड द सेकेंड सेट ऑफ आइलैंड्स इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है बेटा. यहाँ पे देखिए आप बॉक्स देख सकते हो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कौन से सी में है? बे ऑफ बंगाल सी में. ओके, सो बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, एंड अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड है. ओके, ठीक, अब हम पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में. ओके, सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो बेटा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है हमारी कंट्री में वो यूनियन टेरिटरी है. ओके, वो स्टेट नहीं है. ठीक, यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, कंप्राइजिंग ऑफ 572 आइलैंड्स. यानी बड़ा सा आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और उसमें छोटे 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 आइलैंड्स हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्टेट, हम कौन से स्टेट में रहते हैं? उत्तर प्रदेश में. ठीक, तो उत्तर प्रदेश क्या है? स्टेट है, और उसके अंदर बहुत सारी सिटीज़ हैं. कितनी सिटीज़ हैं? 71 सिटीज़ हैं, है ना. तो बड़ा सा स्टेट है और उसके अंदर छोटी 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 खूब सारी सिटीज़ है, शहर है. तो सिमिलरली आइलैंड्स में भी होता है बेटा. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी बड़ा सा यूनियन टेरिटरी है, आइलैंड है, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे 572 आइलैंड्स हैं. ठीक, ये देखिए आप इसमें देख सकते हो, ये देखिए ये बॉक्स में देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और आप छोटे छोटे देख सकते हो ना, छोटे छोटे लैंड फॉर्म्स. तो ये क्या है? 572 आइलैंड्स, बट ऑफ विच 37 आर इनहैबिटेड. इनहैबिटेड का मतलब होता है बेटा जहाँ पे लोग रह रहे हों. सो अमंग्स द 572 islands, only 37 islands are those islands in which people are living. बेटा सिर्फ 37 आइलैंड्स में ही लोग रह रहे हैं, तो बाकी का आइलैंड्स क्या है? बाकी के आइलैंड्स में लोग नहीं रह रहे. वाई? बिकॉज कुछ आइलैंड्स बहुत डेंजरस हैं, पॉइजनस है,
उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं एनिमल्स रहते हैं, डेंजरस एनिमल्स रहते हैं। कुछ आइलैंड्स में ट्राइब्स रहते हैं, जरावा ट्राइब्स, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे लोग नहीं रहते और वहाँ पे जाना भी डेंजरस होता है, खतरे से भरा होता है, इसलिए वहाँ पे कोई नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि वन ऑफ द आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज़ नोन एज स्नेक आइलैंड। उस आइलैंड का नाम क्या है? स्नेक आइलैंड। बहुत छोटा सा आइलैंड है, लेकिन वहाँ पे सारे डेंजरस एंड पॉइजनस स्नेक्स रहते हैं। तो बेटा जिस आइलैंड में स्नेक्स रहेंगे वहाँ पे फिर लोग कैसे रह पाएंगे, राइट? तो इसीलिए इसमें सिर्फ 37 आइलैंड्स ऐसे हैं जो सेफ़ हैं और वहाँ पे लोग रहते हैं। बाकी के सारे आइलैंड्स अनसेफ हैं बिकॉज ऑफ डेंजरस एनिमल्स, बिकॉज ऑफ पॉइजनस स्नेक्स एंड, ठीक है, जहाँ पे बहुत एनिमल्स रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई नहीं रहता। ओके, सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइजिंग 572 आइलैंड्स ऑफ विच 37 आर इनहैबिटेड आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। मैंने आपको बताया था ये कौन से सी में ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है? बे ऑफ बंगाल सी में। ओके, ये देखिए, आप फिर से देखिए मैप, ये देखिए बे ऑफ बंगाल दिया हुआ है और यहाँ पे आइलैंड्स हैं, राइट? ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बैरन आइलैंड्स ब्रैकेट में दिया है अंडमान आइलैंड्स। सो मैंने आपको बताया कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो उसमें भी एक क्या है? बैरन आइलैंड। एक आइलैंड का नाम है बैरन आइलैंड जो अंडमान आइलैंड्स में है। सो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बैरन आइलैंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट और हम इसके बारे में क्यों स्टडी कर रहे हैं। ओके, बैरन आइलैंड इज़ एन आइलैंड लोकेटेड इन द अंडमान सी। सो एंड बेटा बे ऑफ बंगाल सी को हम अंडमान सी भी बोलते हैं, ठीक? और उसी में क्या है, बैरन आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ओके, इट इज़ द ओनली कन्फर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो। अब चिल्ड्रन आपको ये टर्म जो नया है वॉल्केनो वो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ वॉल्केनो। ओके, ये देखिए, ये है वॉल्केनो। अब वॉल्केनो होता क्या है बेटा? वॉल्केनो इज़ एन इरप्शन। ओके, इरप्शन मीन्स कुछ निकल रहा है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में कि देखिए पहाड़ है, ये दिस इज़ अ माउंटेन, और माउंटेन फट के क्रैक हो रहा है और कुछ ना कुछ माउंटेन के अंदर से निकल रहा है, तो उसको हम वॉल्केनो बोलते हैं। सो ये कैसे हो रहा है ये मैं आपको बताती हूँ कि एक माउंटेन है और माउंटेन कहाँ पे है? अर्थ में। ऑब्वियसली अर्थ के ऊपर माउंटेन है, तो अर्थ से जब पुश होता है, कुछ प्रेशर पड़ता है अर्थ के अंदर से माउंटेन में, तो माउंटेन क्रैक हो जाता है, यानी कि फट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फिर जब क्रैक्स आते हैं तो क्रैक्स के बीचों बीच से ये मॉल्टेन रॉक्स निकलते हैं। मॉल्टेन रॉक्स मीन्स पिघले हुए पत्थर। तो ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना, ये आग दिख रही है, मॉल्टेन रॉक्स दिख रहे हैं, पिघले हुए पत्थर, स्मोक एंड ऐश। सो जब माउंटेन फटता है, जब क्रैक होता है माउंटेन, तो उसके अंदर से बहुत सारे मॉल्टेन रॉक्स निकलते हैं, लावा निकलता है एंड स्मोक निकलता है, ऐश निकलता है, तो उसी को हम वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। इरप्शन मीन्स कुछ बाहर निकलना, इरप्ट होना। ऑलराइट, अब ये देखिए व्हाट इज़ अ वॉल्केनो। Volcano is a landform, usually a mountain, where molten rock erupts through the surface of the earth. ये देखिए वॉल्केनो एक ऐसा लैंडफॉर्म है, यानी ऐसा लैंड है जहाँ पे माउंटेन हो, और जब माउंटेन क्रैक होता है, डैमेज होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो उसमें मॉल्टेन रॉक्स निकलते हैं, यानी कि पिघले हुए पत्थर, स्मोक एंड ऐश निकलेगा फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और कब निकलेगा? जब अर्थ से कुछ पुश होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पुश कर रहा हो अर्थ के अंदर से एंड माउंटेन में क्रैक आ गया हो, क्रैक आ गया हो तो कुछ ना कुछ निकलेगा। आप देख सकते हो इस पिक्चर में भी बेटा कि ये माउंटेन में से देखिए कैसे आग के गोले निकल रहे हैं। ओके, ये देखिए ये मेल्ट हो रहे हैं, ये देखिए स्लाइड हो रहे हैं पिघले हुए पत्थर, यानी कि मॉल्टेन रॉक्स एंड बहुत सारा धुआं, स्मोक एंड ऐश। ओके, सो मूविंग टू द प्रीवियस स्लाइड। Barren Island is an island located in the Andaman Sea. It is only confirmed volcanic active volcano. Okay.
अब आपने पढ़ा कि वॉल्केनो क्या होता है। अब मैं बताती हूँ एक्टिव, वाई एक्टिव इज रिटन बिफोर वॉल्केनो। एंड एक्टिव वॉल्केनो इज अ वॉल्केनो दैट हैज़ एटलीस्ट वन इरप्शन ड्यूरिंग द पास्ट 10,000 ईयर्स। सो बेटा एक्टिव वॉल्केनो वो वॉल्केनो होता है कि जो 10,000 ईयर्स में एक बार एटलीस्ट वंस एक बार इरप्शन हुआ हो, यानी कि एक बार वॉल्केनो फटा हो, तो उसको हम एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। ओके, अगर नहीं हुआ है तो हम एक्टिव वॉल्केनो नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे, डेड वॉल्केनो। वाई, अगर 10,000 ईयर्स के अंदर अगर कोई भी इरप्शन नहीं हुआ है, कोई भी माउंटेन फटा नहीं है, तो हम उसको डेड वॉल्केनो कहेंगे। अदरवाइज अगर हुआ है 10,000 ईयर्स के अंदर एक भी इरप्शन, तो हम उसको एक्टिव वॉल्केनो कहेंगे। ओके, सो ये आपने पढ़ लिया, आपने ये भी पढ़ लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब बैरन आइलैंड। बेटा बैरन आइलैंड का क्या इम्पोर्टेंस था कि बैरन आइलैंड में ही एक्टिव वॉल्केनो है। ओके, बैरन आइलैंड में एक माउंटेन है जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो होता है, वहाँ पे एक इरप्शन होता है, राइट। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैरन आइलैंड। इसीलिए हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में पढ़ा, वॉल्केनो के बारे में पढ़ा, और फिर अब बैरन आइलैंड के बारे में भी पढ़ा। ठीक, तो बैरन आइलैंड कहाँ पे है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है। और बैरन आइलैंड का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैरन आइलैंड? द इंपॉर्टेंस ऑफ बैरन आइलैंड इज दैट इन बैरन आइलैंड देयर इज एन एक्टिव वॉल्केनो सिचुएटेड। ओके, ठीक, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट स्लाइड कंटेन्स काजीरंगा नेशनल पार्क। सो बेटा अब नेशनल पार्क क्या होता है बेटा, सबसे पहले आप ये समझिए व्हाट इज अ नेशनल पार्क। बेटा नेशनल पार्क इज अ पार्क वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मीन्स उन्हें बचा के रखा जाता है। क्यों बचा के रखा जाता है? बिकॉज दोज एनिमल्स में गोइंग टू बी एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। अब एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट माने क्या होता है? एंडेंजर्ड मतलब होता है कि उन एनिमल्स को खतरा है। एक्सटिंक्ट माने क्या होता है कि वो एनिमल्स बस मतलब ख़त्म होने वाले हैं, उनकी पॉपुलेशन ओवर होने वाली है। दैट इज़ कॉल्ड एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट। तो नेशनल पार्क में हम क्या करते हैं, ऐसे ही एनिमल्स को जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है या जिनकी पॉपुलेशन बहुत ओवर होने वाली है, जो एनिमल्स नंबर ऑफ एनिमल्स डाई होने वाले, मरने वाले हैं, तो उनको हम नेशनल पार्क में कंजर्व करके बचा के रखते हैं। ओके, ठीक, तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ अ नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ असम, इंडिया। सो काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ अ फेमस नेशनल पार्क, और वो कौन से स्टेट में है? आसाम में है। ऑल राइट, एंड वाई इट इज़ फेमस, वाई दिस नेशनल पार्क इज़ फेमस? दिस नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसेरॉस। यानी कि इस नेशनल पार्क में वर्ल्ड के जो बहुत ही कम नंबर में वन हॉर्न्ड राइनोसेरॉस है, तो वो यहाँ पे नेशनल पार्क में प्रेजेंट है। ओके, वन हॉर्न राइनोज, ये देखिए आप पिक्चर देख सकते हो, देखिए वन हॉर्न है। ओके, सो दिस इज द स्पेशलिटी, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक, जो भी एनिमल्स या प्लांट्स बहुत कम नंबर में बचे होते हैं हमारे वर्ल्ड में या इंडिया में, तो हम उनको इन्हीं पार्क्स में संभाल के रखते हैं। ठीक है, उनकी देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, और हम लोग भी नेशनल पार्क में जाके उन एनिमल्स को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। जैसे हम लोग जू जाते हैं ना एनिमल्स को देखने, है ना, फॉर रिक्रिएशन पर्पस, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, इसी तरह हम नेशनल पार्क में भी जा सकते हैं ऐसे एनिमल्स को देखने। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जम्मू एंड कश्मीर। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ यूनियन टेरिटरी। ठीक, पहले मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8। देयर आर 8 नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, एंड एक यूनियन टेरिटरी आप पढ़ चुके हो पहले, विच वॉज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, एंड दिस इज सेकेंड यूनियन टेरिटरी। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। बेटा जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट था, राइट, लेकिन अब गवर्नमेंट के डिसीजन से अब जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हो गया है। फाइन, सो जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ रीजन एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया एज अ यूनियन टेरिटरी।
Jammu and Kashmir is named after two regions. It encompasses the Jammu region and the Kashmir Valley. ठीक, तो जम्मू एंड कश्मीर में दो रीजन है, फर्स्ट इज जम्मू एंड द सेकेंड इज कश्मीर. सो बेटा कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज श्रीनगर. बेटा मोस्ट ऑफ यू might have visited Jammu and Kashmir as your parents might have get posted in that region, okay, or your relatives might have posted in that region Srinagar, okay. So Jammu and Kashmir का capital है श्रीनगर. Moving to the next slide. Dal Lake. Beta, this is a very famous lake which is situated in Srinagar, okay. So we are going to study about Dal Lake. Dal Lake is a lake in Srinagar. ठीक, श्रीनगर यानी कि कैपिटल है श्रीनगर किसका, जम्मू एंड कश्मीर का. सो दल लेक कहाँ पे है, श्रीनगर में. इट इज़ इंट्रीगल टू टूरिज्म एंड रिक्रिएशन इन कश्मीर. ठीक, हम लोग दल लेक क्यों विजिट करते हैं, क्यों जाते हैं घूमने, क्योंकि बहुत सुंदर है. हम लोग घूमने के पर्पज़ से, टूरिज्म के पर्पज़ से, रिक्रिएशन मीन्स एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से वी विजिट टू दल लेक बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, ओके. It is integral to tourism and recreation in Kashmir and is named the Lake of Flowers. अब दल लेक को हम और क्या बोलते हैं, Lake of Flowers. Jewel in the crown of Kashmir और श्रीनगर्स ज्वेल. बेटा हम इन तीनों नाम से दल लेक को जाना जाता है या मानते हैं. ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, वाई, बिकॉज जैसे क्राउन, जैसे किंग के हेड पे क्या होता है, क्राउन होता है. सो वो क्या होता है, क्राउन क्या होता है, एक प्राइड होता है, एक गर्व होता है, बहुत सुंदर होता है क्राउन, राइट. एक किंग के सर के ऊपर जो हम क्राउन पहनते हैं या क्वीन के सर में, हेड में क्राउन लगाते हैं तो वो बहुत प्रिटी होता है. इसी तरह दल लेक भी जो क्या है, बहुत प्रिटी है एंड इट इज़ सिमिलर टू अ क्राउन, ओके. जैसे जम्मू एंड कश्मीर आपने देखा था एकदम इंडिया के मैप पे टॉप पे था, राइट. अगर आप देखोगे, मैं मैप आपको दिखाती हूँ जम्मू एंड कश्मीर का, ये देखिए इंडिया का मैप है. सो जम्मू एंड कश्मीर इज़ लाइक अ क्राउन इन द हेड ऑफ इंडिया, राइट. सो जम्मू एंड कश्मीर एक क्राउन की तरह एकदम ऊपर है इंडिया के, तो बहुत सुंदर है. इसी तरह हमारा दल लेक भी बहुत सुंदर है. इट इज़ एक्टिंग एज अ क्राउन ऑफ कश्मीर. और श्रीनगर्स ज्वेल क्यों बेटा, जैसे ज्वेलरी होती है ना, ज्वेलरी बहुत प्रिटी होती है, इसी तरह ज्वेल भी बोला गया है दल लेक को बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी प्रिटी. और दल लेक में बहुत सारे हाउस बोट्स होते हैं, ये देखिए आप देख सकते हो हाउस बोट्स, बहुत सारे बोट्स होते हैं. हम यहाँ पे रो कर सकते हैं बोट्स, राइट. और हम पीछे देखिए, क्योंकि कश्मीर है, कश्मीर इज़ अ माउंटेन एरिया, सो यहाँ पे बहुत सारे पीछे माउंटेन एरिया है और ये बड़ा सा लेक है, ठीक. और यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, हाउस बोट में हम लोग रह सकते हैं, राइट. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. डेजर्ट. अब चिल्ड्रन डेजर्ट क्या होता है, व्हाट इज़ अ डेजर्ट. अ डेजर्ट इज़ अ बैरन एरिया ऑफ लैंडस्केप. डेजर्ट बेटा क्या होता है, डेजर्ट एक प्रकार का लैंड फॉर्म होता है जो बैरन होता है. बैरन मीन्स बंजर मीन्स जहाँ पे वेजिटेशन नहीं हो सकता. वेजिटेशन मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, ओके. बैरन एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे हम क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते, जहाँ पे हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते. तो ऐसे एरिया को, ऐसे लैंड को हम डेजर्ट कहते हैं. Where little precipitation occurs. बेटा precipitation means rainfall. So desert एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है, बहुत कम बारिश होती है और वहाँ पे हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते. It is an extremely dry area of land with sparse vegetation. ड्राई एरिया मीन्स सूखा एरिया है जहाँ पे बेटा, जहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होगी, जहाँ पे बारिश नहीं होगा वहाँ पे तो सूखा होगा, ऑब्वियस है, इसीलिए वो ड्राई एरिया है. विद स्पार्स वेजिटेशन मीन्स विद लिटिल वेजिटेशन, बहुत कम, बिकॉज वहाँ पे बारिश नहीं होगी तो फिर कैसे क्रॉप्स ग्रो करेंगे, राइट. तो इसीलिए हम इसको डेजर्ट कहते हैं. और डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में कौन से एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, कैमल्स, राइट. और वहाँ पे बहुत सारा सैंड होता है, आप देख सकते हो पिक्चर्स में, रेत सैंड है, ओके. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो बेटा यू कैन रिकॉग्नाइज दिस पिक्चर. हु इज़ ही? सो ही इज़ द फादर ऑफ नेशन
महात्मा गांधी. ओके, सो यू नो who is the father of nation? Mahatma Gandhi is the father of nation. ठीक. Moving to the next slide. So children, in this slide we are going to study about directions. So directions, there are 4 directions. Okay, आप देख सकते हो 4, 1 2 3 4 N E S W. So I will tell you the full form of these directions. अब देखिए, N is for north, E is for east, S is for south and W is for west. Okay, so there are 4 directions. Number 1 is north, number 2 is east, number 3 is south and number 4 is west. So beta, you should know all the 4 directions. Okay beta, when you will go to class 3, then you will study 4 more directions. Okay, so total number of directions, there are 8 direction, but अब अभी आप छोटे हो, क्लास 2 में हो, so you should study only 4 direction. but आप जब क्लास 3 में जाओगे तो आप 8 directions पढ़ोगे. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक, आपको फिर हम ये देखिए, इंडिया का मैप है यहाँ पे, और इंडिया के मैप में अब मैं आपको बताती हूँ कि वेयर इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. अब ये देख सकते हो, देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट. ओके, सो बेटा ऊपर वाला जो रीजन है इंडिया का, यानी कि जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरांचल, हरियाणा, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब कहाँ पे है? ये सब नॉर्थ में है. मतलब इंडिया के मैप में नॉर्थ में ये सारे स्टेट्स हैं. ठीक, इसी तरह वेस्ट में आप देखिए, वेस्ट में आपको गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान मिलेगा. ईस्ट में आपको देखिए मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सारे स्टेट्स आपको ईस्ट में मिलेंगे. अब देखिए साउथ में कौन से स्टेट्स मिलेंगे? साउथ में देखिए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये सब आपको साउथ में मिलेंगे. ओके, ठीक. सो हम इंडिया के मैप में भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बता सकते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, अब देखिए ओल्डेस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, यानी हमारे इंडिया में सबसे पुरानी स्पोकन लैंग्वेजेस कौन सी है? लैंग्वेज तमिल. यानी तमिल एक लैंग्वेज है जो कि तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु, आप देखिए अब कहाँ पे तमिलनाडु है, ये देखिए, ये येलो वाला आप देख रहे हैं नीचे एकदम साउथ में. तमिलनाडु इज सिचुएटेड इन साउथ. तमिलनाडु इज अ स्टेट एंड इट इज़ लोकेटेड इन सदर्न रीजन ऑफ इंडिया. ठीक, तो तमिलनाडु में हम कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल. ओके, सो बेटा देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया, यानी इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी हम बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं. राइट, हम तमिल बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हम पंजाबी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं. राइट, हम महाराष्ट्रियन बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं. राइट, सो कन्नड़ बोलते हैं. तो बहुत सारी भाषाएं हैं हमारे देश में. देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया एंड वन ऑफ देम इज़ तमिल. उनमें से एक तमिल भाषा भी है जो कि हम तमिलनाडु में बोली जाती है. सो ओल्डेस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, यानी सबसे पुरानी भाषा जो बोली गई है इंडिया में, वो कौन सी है? तमिल. ओके, आई होप यू आर नाउ क्लियर विद दिस स्लाइड. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब बेटा गुरमुखी, व्हाट इज गुरमुखी? बेटा गुरमुखी अल्फ़ाबेट, ये देखिए जो भी नीचे दिया हुआ है ना, ये अल्फ़ाबेट्स. जैसे हम हिंदी में क ख ग घ स्वर व्यंजन पढ़ते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, इसी तरह हम पंजाबी में, यानी सिख लोग क्या कौन सी भाषा करते हैं? पंजाबी. राइट, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं और लिखते हैं? पंजाबी लिखते हैं. तो पंजाबी में भी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो उन अल्फ़ाबेट्स को क्या बोलते हैं? गुरमुखी. ओके, सो गुरमुखी इज़ अ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स विच आर प्रैक्टिस्ड बाय सिख यानी कि पंजाबीज, यानी ये पंजाबी लैंग्वेज है जो इसको गुरमुखी बोला जाता है. सो वी आर गोइंग टू रीड इट नाउ. गुरमुखी अल्फ़ाबेट writing system developed by the Sikhs in India. बेटा सिख is one of the religions practiced in India. So सिख लोग कौन सी भाषा लिखते हैं? गुरमुखी. In India for their sacred literature. Okay, sacred means pure, honorable. Okay, so वो अपनी भाषा को गुरमुखी बोलते हैं. Moving to the next slide. Next slide is okay. So here we end the session. I hope you
understood what I tried to teach you, and there were many slides, and you are going to do the exercise in the book now based on this video. Okay, so thank you so much, children, and I hope you will complete your exercise in the book now and you understood what I tried to teach you. So thank you so much, and stay healthy, stay safe.